पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मिल्लत है तो आवाज उठानी होगी, दर्द मिल्लत है तो आवाज उठानी होगी, सूरत हाल जमाने को बतानी होगी, और तुम जो उठ जाओ जुल्म बर्बरियत के खिलाफ, ये आपके ईमान की जिंदा जावेद निशानी होगी। आपके सामने तशरीफ़ ला रही हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद अबरार साहब, नौजवान खतीब और मुकर्रिर। एक ज़रूरी ऐलान ये है कि हमारे दरमियान एक और बड़ी रूहानी और इल्मी शख्सियत हज़रत मौलाना मोहम्मद हारून साहब, जो सरज़मीन शिकारपुर से हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार खुसूसियात से नवाजा है। एक खुसूसियत दारुल उलूम देवबंद अज़हर हिंद मादर इल्मी के मुहतमिम और शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब नौमानी बनारसी हज़रत वाला ने हज़रत मौलाना मोहम्मद हारून साहब को खिलाफत से नवाज रखा है। माशाअल्लाह, वो शख्सियत भी हमारे माबैन तशरीफ़ ला चुकी हैं। हज़रत वाला ही की दुआ पर और चंद नसीहतों पर और हज़रत वाला ही के दस्ते मुबारक से जिन तलबा ने यहाँ से हिज़् मुकम्मल किया है, उनके सरों पर दस्तार बांधी जाएगी। आप सभी हजरात आखिर तक इसी तरह जमकर बैठे रहें। अल्लाह आपके यहाँ आने को बेहद मकबूल और मंजूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله تعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي في مقام الآخر: المرء مع من أحبه. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جس دور پہ نازاں تھی دنیا، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے
جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے، اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے مسلم، اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے مسلم، جس ضرب سے سینے ہلتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اے لا الہ کے وارث، اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبہ قلندرانہ۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء دین جلسے کی نسبت پر آئے ہوئے تمام مہمانان کرام، اس جلسے کے روح رواں حضرت مولانا مفتی محمد مبین صاحب، ایسے ہی قاری محمد عارف صاحب، آصف صاحب، اور جن کے واسطے اور جن کی نسبت سے یہاں تک حاضری طالب علم کی ہوئی، جناب حضرت مولانا مفتی محمد زبیر صاحب اور دیگر حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان سب حضرات کی موجودگی میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم بہت ہی مختصر سے وقت میں کچھ اہم گفتگو کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ آپ سبھی حضرات عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا سا امتحان لے لیں، یہ جو پنڈال سے باہر ہیں یہ اندر آ سکتے ہیں؟ اپنی کرسیاں اٹھا کر اندر آ جائیں۔ ادھر جو کونے پر دو حضرات ہیں، گاڑی کے پیچھے ہیں، پنڈال کے ادھر ہیں، دو چار سڑکوں پر ہیں، اگر تھوڑی سی دیر کے لیے آئینے کی طرح سامنے ہوں گے تو ایک دوسرے کے ہم داغ دیکھ سکیں گے، اور پھر ان داغوں کو دیکھ کر ہمیں اپنا سینہ دکھ جائے گا۔ جتنے داغ ہمارے دلوں پر آ گئے ہیں ہماری نظر وہاں تک پہنچ جائے گی، اور جس نے اپنے دلوں کے داغوں کو دیکھ کر ان کو دھونے کا فکر اپنے ذہن میں لے لیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو ایک نہ ایک دن دھو ڈالے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے نوجوان دینی بھائیوں، آپ میرے خطبہ پڑھنے سے قطعاً یہ فیصلہ مت کرنا کہ شاید کوئی لمبی گفتگو چھیڑی جائے گی، کوئی لمبا تذکرہ ہوگا، بہت ہی مختصر سا وقت آپ حضرات کا لیا جائے گا۔ بیان تو جو ہونا تھا استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد مستقیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہم سب کو بڑی قیمتی باتیں سنا کر گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ میرے محترم بزرگوں، آج دنیا جس موڑ پر کھڑی ہے اور جس راستے کے کنارے پر میں اور آپ ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کے اندر سب سے بہتر اور اشرف مجھے اور آپ کو بنایا ہے۔ انسان سے بہتر کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتے تو انسان نہ بنا کر مجھے اور آپ کو کسی جانور کی صورت دے کر پیدا کر دیتے۔ کون کیا بگاڑ سکتا تھا؟ کیا ہم نے کبھی التجا کی تھی؟ کبھی ہم نے کوئی درخواست کی تھی؟
क्या कभी कोई कुर्बानी दी थी? अल्लाह के सामने कभी हम गिड़गिड़ाए थे कि यार अब हमें जानवर न बनाकर इंसान बना दिया जाए? रब्बे काबा की कसम, ये वही अल्लाह तबारक व तआला है जिसने मेरे और आपके ऊपर यह एहसान किया है कि नालों में गंदगी खाने वाला जानवर नहीं, चरिंदा और चरने वाला नहीं, परिंदा और उड़ने वाला नहीं, और तमाम हराम और हलाल की न पहचान करके अपनी ग़िज़ा को हासिल करने वाला नहीं, बल्कि इंसान बनाकर अशरफुल मखलूक़ात का लक़ब मुझे और आपको दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी मखलूक की तारीफ करते हुए किसी कसम का सहारा नहीं लिया सिवाय इंसान के। अल्लाह तबारक व तआला 4-5 कसमें खाता है, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, कि मैंने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया, बेहतरीन नक्शे में ढाला, बेहतरीन सीरत से नवाजा, बेहतरीन सूरत से नवाजा। अगर अल्लाह चाहते तो सामने की हुई दोनों आंखों को, एक को आगे और एक को पीछे कर देते। जैसे दुनिया की कंपनी गाड़ियों में लाइट लगाती है, पीछे की जरूरत पड़ती है तो वो जलती है, आगे की जरूरत पड़ती है तो वो जलती है। अल्लाह तबारक व तआला ने 2 ही आंखें दी हैं, जो सामने को भी देख रही हैं, जो दाएं को भी देख रही हैं, जो बाएं को भी देख रही हैं। पीछे से आने वाली आहट को महसूस करके बगैर इरादे के गर्दन घूम जाती है और अपने आने वाली आहट को देख लेती है। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह तबारक व तआला ने इतना हसीन और खूबसूरत नक्शा मेरा और आपका तैयार किया है। जहां आंखों की जरूरत थी वहां आंखें लगाई हैं, जहां कानों की जरूरत थी वहां कानें लगाए हैं, और कैसा निजाम बनाया है। मैं और आप ही तो इन नेमतों के ऊपर गौर नहीं करते, वरना ये इतनी कीमती दौलत है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व इन तरुद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो तो हरगिज नहीं शुमार कर सकते हो। ये जो आंखें मेरे और आपको अल्लाह ने दी हैं, जहां तक भी नजर उठती है हम अंधेरे और उजाले का फैसला कर देते हैं, अच्छी और बुरी चीज को देखकर फैसला कर देते हैं। खुदा की कसम, किसी नाबीना से मिलिए, आपकी बस्ती में अगर कोई नाबीना हो जो लाठी के सहारे चलने पर मजबूर हो, जिसे कोई दिखाई न देता हो, बेटा भी कहता है, अब्बू कहकर पुकार लेता है, अपने बेटे का रंग नहीं मालूम होता, अपने बेटे का नक्शा उसके जहन में नहीं होता, अगर वो नाबीना सारी दुनिया की दौलत का मालिक बन जाए और उसके सामने को पूरी दुनिया झुक करके कहे कि ऐ दौलत वाले, क्या तुझे किसी चीज की जरूरत है, तो ये तालिब इल्म कहता है सारी दौलत को कुर्बान करके अगर उसकी कोई पहली तमन्ना होगी वो यही कहेगा कि जो मेरे चेहरे पर 2 आंखें हैं इनके अंदर रोशनाई बिनाई नहीं है, इस दौलत को कुर्बान करके अगर मुझे आंखों की बिनाई हासिल हो जाए तो मेरे लिए इससे बड़ी खैर की बात कोई नहीं। आपको आंखों की कीमत मालूम करनी है तो बगैर आंखों वाले से पूछिए। एक हाथ की कीमत मालूम करनी है तो कोई बगैर हाथ के भी मिलेगा, उससे पूछिए हाथ की कीमत क्या है। मुझे और आपको अल्लाह ने पैर दिए हैं जिनसे हम रास्ता तय करते हैं, जिनके पैर नहीं है, जो जमीन पर घिसट के चलने पर मजबूर हैं। जरा पूछिए तो सही, इन पैरों की कितनी कीमत है, इनकी क्या कदर है, क्या इनकी वक़्त है, वो बताएगा तुम्हें। क्या पैरों की हकीकत है, कितनी इनकी कीमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको आंखों और नाक कान हाथ पैरों के एतबार से खुशनसीब बनाया है, इंसान बनाया है। अब तो जरूरत यह है कि इंसान वही मुकम्मल इंसान होता है जिसके अंदर इंसानियत होती है, वरना यही इंसान 2 पैरों पर खड़ा हुआ, 2 हाथों से काम करता हुआ, 2 आंखों से देखता हुआ, 2 कानों से सुनता हुआ, जबान से बोलता हुआ जानवरों की फहरिस्त में पहुंच जाता है। अगर इस इंसान को इंसान रहना है तो इंसानियत पर बरकरार रहेगा तो इंसान रहेगा, वरना जानवरों की फहरिस्त में चला जाएगा। इस इंसान को इंसानियत सिखाने के लिए रोज़े अव्वल से अल्लाह तबारक व तआला ने जब से इंसानों का सिलसिला शुरू हुआ सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस अपनी कौम के अंदर भेजकर उनके लिए रहनुमा बनाकर उतारा, पैगंबर बनाकर उतारा। कोई मान आएगा, कौम
راستہ پوچھے گی، کوئی مسئلہ آئے گا، حرام و حلال کو پوچھا جائے گا، اے آدم تمہیں ہم نے ساری دنیا کے انسانوں کا پہلا بھی بنایا ہے اور ان کے اوپر رہنما بھی بنایا ہے تاکہ آپ ان کو راستہ دکھاتے رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، وقتاً فوقتاً حضرات انبیاء تشریف لاتے رہے، اخیر میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لے آئے اور یہی آخری پیغمبر ہیں۔ اب کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، اب کوئی رہنما آنے والا نہیں ہے، کوئی جبریل جس کے پاس آئے وہ شخصیت اب ایسی آنے والی نہیں ہے جو نیا پیغام مجھے اور آپ کو سنائے گی۔ قیامت تک اب یہی پیغام رہے گا، یہی آپ کا دیا ہوا قرآن رہے گا، یہی آپ کا طریقہ رہے گا۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے نبی آپ اب قوم کے درمیان کھڑے ہو کر اعلان کر دیجئے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے پیغمبر اعلان کر دیجئے، اپنی قوم کو بتا دیجئے، اگر اللہ کا محبوب ہونا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِي تو محمد رسول اللہ کی اتباع کرنی پڑے گی، آپ کے طریقے سے محبت کرنی پڑے گی۔ مائک کے ساتھ ذرا چھیڑ چھاڑ ہو رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اگر چاہتے ہو کہ اللہ محبوب بنا لے، اللہ ہمیں اپنی رحمت کا سایہ دے دے، اللہ ہم سے محبت کرنے والا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آ جائیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ نبی کی زیارت خام میں ہو، ہر آدمی چاہتا ہے ولیوں میں میرا نام آ جائے، ہر آدمی چاہتا ہے نیکوں میں میرا نام ہو جائے، لیکن نیکی آئے کہاں سے؟ نیکی اطاعت سے آتی ہے۔ حضرات صحابہ کو زمین پر کھڑے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عرش کی الہی کی اونچائی دکھائی ہے اور نئے نئے القاب سے نوازا ہے، کہیں اولئک هم المفلحون کہا جاتا ہے، کہیں اولئک هم الفائزون کہا جاتا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی اگر کہا گیا ہے کچھ نہ کچھ تو بات ہے جو حضرات صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا لقب دیا ہے۔ اللہ راضی ان سے ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، کچھ تو بات ہوگی۔ یہی ایک بات ہے بنیادی طور پر کہ حضرات صحابہ کی زندگی میں نبی کی اطاعت بہت ہی اہم چیز تھی۔ میں اور آپ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ کتنی اطاعت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے اسلام ہے، ابھی جوتوں کو اتارنے کا حکم نماز میں نہیں آیا، اور اس وقت کے جوتوں میں اور آج کے جوتوں میں فرق ہے۔ اس وقت کے جوتے جو ہوتے تھے وہ ملائم ہوتے تھے، اگر ان کو پہن کر سجدہ بھی کیا جائے اور تحیات کی مقدار میں بھی بیٹھا جائے تو ان کے نرماہٹ کی وجہ سے پیروں کی انگلیاں مڑ کر خانہ کعبہ کی طرف ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ یہی ہوا کہ ابتدائے اسلام ہے، ابھی جوتوں کے اتارنے کا حکم نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہنے ہوئے ہیں، آپ کے پیچھے مقتدی حضرات صحابہ کے پیروں میں جوتیاں موجود ہیں، آپ نماز کی حالت میں ہیں، جبریل امین آ جاتے ہیں، جبریل امین آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب آپ کے جوتے پر گندگی لگی ہوئی ہے اور ناپاکی کے ساتھ نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے حبیب نے نماز ہی کی حالت میں اپنا جوتا اتارا ہے، تمام صحابہ پیچھے ہیں، ابھی آپ نے اپنی زبان سے نہیں کہا میرے پیاروں جوتے اتار دو، ابھی آپ نے نہیں کہا کہ میری اطاعت میں آ جاؤ، ابھی آپ نے اعلان نہیں کیا، ابھی آپ نے سلام نہیں پھیرا۔ حضرات صحابہ اطاعت میں کتنے آگے ہیں، کتنی سبقت کرتے ہیں۔ جیسے ہی نماز میں دیکھا آقا کے جوتے اتر گئے، سارے صحابہ نے اپنے جوتے نکال کر کے الگ کر دیے۔ یہ اطاعت تھی حضرات صحابہ میں، اسی اطاعت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بلال حبشی کو جو بدن کے اعتبار سے کوئی خوبصورتی نہیں رکھتا، لیکن جب اللہ کا حبیب جبریل امین کے ساتھ جنت کی سیر کرنے جاتا ہے، شب معراج میں جاتا ہے، پوچھتا ہے جبرائیل جنت میں ہم سے پہلے کون چلا گیا؟ اس میں چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے حبیب کو حضرت جبریل امین کہتے ہیں اے اللہ کے
کے حبیب یہ وہی بلال ہے جو حبشہ کی زمین سے آیا ہے، جس کے پیٹھ پر، جس کی کمر پر احد کہنے کی وجہ سے دشمنوں نے کوڑے لگائے ہیں۔ وہ آپ کی محبت میں ایسا ہی، آپ کے عشق میں ایسا غرق ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب وہ زمین پر چلتا ہے، چلتا مکے کی گلیوں میں ہے، چلتا مدینے کی گلیوں میں ہے، اور چلنے کی آواز جنت کے بالا خانوں سے آ رہی ہے۔ یہ کون سی بات تھی؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم نبی کے دیوانے، ذرا کسی کا دل پکڑ کے تو دیکھو، کسی سے کہہ کے تو دیکھو کیا تو محمدی ہے؟ تو ایسے بھری آواز سے کہے گا ارے ہم سے بڑا محمدی کون ہوگا، ہم سے بڑا محبت کرنے والا کون ہوگا؟ آقا نے فیصلہ فرمایا ہے المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا کل میدان محشر میں اسی کے ساتھ ہو جائے گا۔ آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر فیصلہ کر سکتے ہیں ہم دنیا داروں سے اور دنیا داری سے کتنی محبت کر رہے ہیں اور دینداری سے کتنی محبت کر رہے ہیں۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی نکل کر آ جائے گا، اور دعوے بڑے سے بڑے دعوے ہو رہے ہیں۔ جس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے زاہد اور عابد کو، جس کو جنت کا خزانچی رہنے کا موقع دیا گیا، جسے فرشتوں کے اوپر سرداری کا حکم دیا گیا اور وہ سردار بن کے رہا، جو میرا اور آپ کا آج کھلا دشمن ہے، جس کو میں اور آپ اپنی زبان میں شیطان بھی کہتے ہیں اور ابلیس بھی کہتے ہیں، ارے کیا قصور تھا اس کا؟ کون سے گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دربار سے بھگایا تھا؟ کیا اس نے نمازیں چھوڑی تھی؟ کیا اس نے روزوں سے انکار کیا تھا؟ کیا کسی عبادت میں کوتاہی کی تھی؟ نہیں، بلکہ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے یہی تو بڑائی آئی تھی کہ میں فرشتوں کے اوپر سردار ہوں، یہ مٹی کا پتلا ہے، یہ مٹی سے پیدا ہے، میں آگ سے پیدا ہوں، بھلا سجدہ میں اس کے سامنے کروں یا یہ میرے سامنے کرے؟ یہ میں تو بڑا ہوں، یہی بڑائی اس کے دل میں سرایت کر گئی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا الکبریاء ردائی، حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ بڑائی میری چادر ہے، جو بھی کھینچے گا سمجھ لو وہ میرا دشمن ہو جائے گا۔ بڑائی اللہ کی چادر ہے۔ آج میں اور آپ ہر انسان پانچوں انگلی تو برابر نہیں ہوا کرتی، لیکن بہت ساری تعداد اور افراد وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں اور جن کے ذہنوں میں ہر اعتبار سے بڑائی گھسی ہوئی، جبکہ اللہ کو بڑائی پسند نہیں۔ تواضع اور انکساری اللہ کو پسند ہے، بڑائی پسند نہیں ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، قرآن کریم کی آیت ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ، زمین پر اکڑ کر کے مت چل، اپنی چودراہٹ مت دکھا، اپنا بڑا نسب مت دکھا، بڑی بلڈنگ کے نشے میں مت رہے، بڑی گاڑی کے نشے میں مت رہے۔ خدا کی قسم، تو جب نہا کر کے کپڑے پہنتا ہے، یہ کم سن اس بات کو ہر تقریر میں کہا کرتا ہے، جب تو غسل کرتا ہے اپنے ہاتھ سے پانی ڈالتا ہے، تیرے ذہن میں یہ کیوں نہیں آتا آج تیرے بازو میں طاقت ہے، تو اپنے ہاتھ سے پانی کا مگ اٹھا کر اپنے سر پہ ڈال رہا ہے، آنے والا غسل ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ پانی ڈالنے والا بھی دوسرا ہاتھ ہو، تیرے بدن پر رگڑے جانے والا، رگڑنے والا بھی دوسرا ہاتھ ہو، تو یہ بھی نہ بتا سکے کہ پانی ٹھنڈا لگ رہا ہے یا گرم لگ رہا ہے۔ جس وقت تو اپنی سیف سے کپڑے نکال کر پہنتا ہے، ایک لمحے کے لیے تو سوچ لیا کر کہ جن کپڑوں کو بڑے سنورنے کے لیے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے پہنا جا رہا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کپڑوں کو اتارنے کا نمبر بھی نہ آئے، بلکہ تیرا وہ چہیتا جو تیرا نام نہیں بلکہ نسبت کے ساتھ پکارتا ہے، یا کبھی حضرت کہہ کر پکارتا ہے، کبھی ماسٹر کہہ کر پکارتا ہے، کبھی پردھان کہہ کر پکارتا ہے، کبھی وزیر کہہ کر پکارتا ہے، یہی تیرا چہیتا ان خوبصورت کپڑوں کو تیری روح کے نکل جانے کے بعد یہ بھی نہیں سوچے گا کہ ان کو مکمل طریقے سے کیسے نکالا جائے، بلکہ اعلان ہو جائے گا کہ بٹن کھول کر کے بھی نکالیں تو نکالنا بڑا مشکل ہے، کینچی لائی جائے ان کپڑوں کو کاٹ کر نکالنے کا نمبر بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نے میرے اور آپ کے اوپر کروڑ نہیں بلکہ کوئی گنتی نہیں ہے اتنے احسان کیے ہیں. ان احسانوں کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے. اور جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا ہوگا اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا. اور اگر اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی نہ شکروں کو نعمت نہیں دیا کرتا, ان سے نعمت چھین لیا کرتا ہے. آج بڑی بڑی دولتیں ہم سے جو چھنتی جا رہی ہیں اور تمام کو تفصیل میں نہ لا کر اپنی مساجد اور مدارس کو لے کر اس بات کو میں کہنے آیا کہ اگر ہمارے مدارس کی عظمت اور عزت ہمارے دلوں میں ہوتی, ہماری مسجدوں کی اہمیت حقیقی طور پر ہمارے دلوں میں ہوتی, رب کعبہ کی قسم کون سا وہ قلم تھا جو ہماری مسجدوں کے خلاف چل جاتا, کون سا وہ ہاتھ تھا جو ہماری مسجدوں کے خلاف چل جاتا. اگر مسجدوں کے خلاف قلم چلا ہے, اگر اذانوں کے خلاف کوئی آواز اٹھی ہے, اگر مدارس کے خلاف کوئی اعلان لگایا گیا ہے, اگر مدارس کے خلاف کوئی سازش کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے, تو میں یہیں تک پہنچا ہوں کہ مدارسوں کی عظمت, مساجدوں کی عظمت, مسجدوں کے منبروں سے, مسجدوں کے مناروں سے نکلنے والی آواز کا ہم نے ہی جواب نہیں دیا تو اللہ تبارک و تعالی ان نعمتوں کو چھینے گا نہیں تو کرے گا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی خود لاٹھی لے کر نہیں آتا. جب کسی قوم کو مار دینی ہوتی ہے, اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے تمام بادشاہوں کے دل میرے قبضے قدرت میں ہے. جب قوم میری اطاعت کرتی ہے تو انہی حاکموں کو ان کے اوپر میں نرم بنا دیتا ہوں, اور جب قوم میری نافرمانی پر آتی ہے تو انہی حاکموں کو ظالم بنا دیتا ہوں. پھر وہ طرح طرح کے قانون لگا کر, طرح طرح کی باتیں بیان کر کے, خلاف نعرے بازی کر کے راستوں پر کھڑے ہو کر عزت پر بھی حملے کرتے ہیں, مال پر بھی حملہ ہوتا ہے, جان پر بھی حملہ ہوتا ہے. العاقل تکفیہ الاشارہ, عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. کیا ہماری محفوظ ہے؟ جان ہماری محفوظ نہیں, مال ہمارا محفوظ نہیں, عزت ہماری محفوظ نہیں. مسلمانوں میں نے اسی لیے شروع میں کہا تھا ہر آدمی جان رہا ہے آج ایمان والا کس موڑ پر کھڑا ہے, جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا, تجھے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں, کوئی خوف تیرے دل میں نہیں آنا چاہیے. شرط یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر صحیح معنی میں تو ایمان والا ہو گیا تو کوئی ڈر تجھے ڈرا نہیں سکتا, کوئی خوف تیرے دل کو دہشت میں نہیں لا سکتا. اگر اللہ کا ڈر دل میں ہوگا تو دنیا کا ڈر اللہ ختم کر دے گا. اگر اللہ کا ڈر دلوں سے ختم ہوگا تو ایک مچھر سے بھی ڈرنا پڑے گا, ایک کیڑے سے بھی ڈر لگنے لگے گا, باطل طاقتوں سے دیکھ کر گھبراہٹ ہونے لگے گی. رب کعبہ کی قسم جس دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے دنیا کی کوئی بڑی طاقت اس دل کو ڈرا نہیں سکتی. اگر دل ڈر جاتے تو مشاطہ نامی عورت کو قتل کرا کے جب فرعون اپنے دربار میں آیا اور اپنے گھر آیا ہاتھ کانپتا اور کہا کہ آسیہ آج میں اس کو مشاطہ کو قتل کرا کے آیا ہوں. آسیہ نے پوچھ لیا کہ جرم کیا تھا. آسیہ وہ ہے کہ جو تمام عورتوں کے درمیان سے خوبصورتی کے اعتبار سے چھانٹ کر, مالداری کے اعتبار سے چھانٹ کر, ذہین ہونے کے اعتبار سے چھانٹ کر فرعون نے اپنی شریک حیات جس کو بنایا تھا یہی حضرت آسیہ اپنے ایمان کو بھی چھپائی بیٹھی تھی. فرعون کو نہیں پتا تھا کہ خود تیری بیوی موسیٰ کا کلمہ پڑھ چکی ہے. یہی فرعون جب آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے اس کو قتل کرایا, آسیہ نے پوچھ لیا کہ کون سا جرم کیا تھا, کون سا گناہ تھا, کہ گناہ یہ تھا وہ ہمیں رب نہیں کہتی تھی, موسیٰ کے رب کو رب کہتی تھی. حضرت آسیہ کی زبان کھل گئی, آج تک ایمان چھپایا تھا بے باک بول گئی کہ اگر یہی قصور ہے تو یہ قصور تو آسیہ نے بھی کر لیا ہے, یہ بھی موسیٰ کا کلمہ پڑھ چکی ہے, یہ بھی موسیٰ کے رب کو رب مان چکی ہے. لا الہ الا اللہ, موسیٰ کلیم اللہ. فرعون نے جب سنا تو پیروں تلے سے زمین سرک گئی کہ نجوم
रोमियो ने सही कहा था, ताब ख्वाब की ताबीर बताने वालों ने सही कहा था, तेरा बेड़ा गर्क तेरे घर से ही होगा, तेरी गोद में पलने वाला बच्चा ही तेरे तख्तों को पलट देगा। ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का निजाम है। अल्लाह की लाठी में देर नहीं होती। अल्लाह इज्जत देता है तो जलील करने में देर नहीं लगा करती। वह तो इज्जु मंतशा वह तो जिल्लु मंतशा, इज्जत का मालिक भी वो है, जिल्लत का मालिक भी वो है। फिरौन के जहन में यह था कि कभी तुझे आंच नहीं आएगी, कभी तुझे कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कोई ताकत तुझे जेर नहीं कर सकती। और यूं ही नहीं, कई सौ साल बराबर हमारे अकाबिर बताते हैं फिरौन को बुखार तो क्या कभी सर में दर्द तक नहीं हुआ। ताकत के एतबार से भी बड़ा, मालदारी के एतबार से भी बड़ा था। लेकिन जब वक्त आता है तो अब खुद के घर में हजरत आसिया कहती हैं कि मैंने भी मूसा का कलीमा पढ़ लिया है। चुनांचे हजरत आसिया को भी इसी ईमान के खातिर, इसी कलीमे के खातिर दरबार में लाकर खड़ा कर दिया जाता है। वो आसिया जो महलों में रहती थी, कई कई पर्दों के पीछे रहती, हर आदमी को मुलाकात के लिए वक्त लगाना पड़ता था, आज वही आसिया दरबार में खड़ी है, ईमान की वजह से खड़ी है। फिरौन ने ऐलान किया है पहले हम इसको रुसवा करेंगे, हो सकता है ये अपनी रुसवाई को बर्दाश्त न करे और मूसा के कलीमे का इनकार कर दे। लेकिन ये कलीमा होता ही वो है जो पढ़ लेता है, जान की कुर्बानी तो दे देता है, लेकिन कभी ईमान का सौदा नहीं होने देता। कहो इंशाअल्लाह। आज इसी साबित कदमी की जरूरत है। आज उसी मोड़ पर खड़े हैं। अब नमाजों का मामला नहीं रहा, अब रोजों का भी मामला नहीं रहा, अब यह भी नहीं कि वक्त पर ज़कात गई या ना गई, अब यह भी नहीं कि कोई साहिब निसाब हज को गया कि नहीं गया। अब तो ईमान का भी फिक्र है, किसके दिल में ईमान है, कब तक बाकी रह रहा है। न ऐसा ना हो जाए किसी मोड़ पर जाकर फंस जाए, दुश्मनों के हाथों में पहुंच जाए और ईमान से भी हाथ धोने पड़े। अब वो वक्त वो चल रहा है। मेरे नौजवानों, ये गैर बातिल ताकतों की कुछ साजिशें हैं कि किस तरह से हमारे दिलों से ईमान को खत्म कर दिया जाए, हमारे चेहरों से नबी की सुन्नत को उजाड़ दिया जाए, हमारे सरों से टोपियों को जुदा कर दिया जाए। अभी हम गफलत की नींद में हैं। आने वाला वक्त बड़ा ताबनाक है, आने वाला वक्त बड़ा खतरनाक नजर आ रहा है। अगर अभी अपनी दिल की आंखों को नहीं खोला और दूर अंदेशी के तौर पर कुरान को सीने से नहीं लगाया, ईमान का ये नारा अभी अपनी जबानों से बुलंद नहीं किया, अपने बीवी बच्चों की अपनी बीवी बच्चों के सामने इस कलीमे के तकाजों को न सामने रखा और उनको खड़ा न किया, तो कल बहुत बड़ा इस कौम का नुकसान हो सकता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हजरत आसिया को हुक्म दे दिया गया, दरबारियों से कहा गया कि जो जोड़ा इसने हमारे दरबार में पहना है इसको उतार दिया जाए, इसको बराहना कर दिया जाए। तोड़ी के मुसलमानों, अगर किसी मर्द को भी चौराहे पर खड़ा करके नहीं बल्कि उसी के घर के सहन में बगैर कपड़ों के बराहना कर दिया जाए तो उसकी गैरत कैसे गवारा करेगी। चाहे कि कोई औरत ऐसी हो जिसे दरबार में नंगा किया जा रहा हो, रब्बे काबा की कसम, वो रब की मोहब्बत ही थी कि जो आसिया को इस चीज से भी नहीं दबा सकी। आसिया अपने ईमान के साथ खड़ी रही, दरबारियों ने जोड़ा उतारा, बरहना कर दिया और यहां तक भी जब बात नहीं बनी, वो मूसा का कलीमा पढ़ती रही, मूसा का नाम लेती रही, मूसा के रब को रब कहती रही। तो यही नहीं कि सिर्फ जोड़ा उतार कर बरहना करके रुसवा कर दिया जाता, बल्कि उसको जमीन पर लिटाकर मैखोर कीलों के जरिए से जमीन में जड़ दिया गया और जल्लादों को हुक्म दिया गया कि जिस तरह से जानवरों को ज़िबह करके खाल जुदा की जाती है, इसको ज़िबह नहीं करना बल्कि जिंदा होने की हालत में ही इसकी चमड़ी को उतारना है। पढ़ करके और सुन करके भी रुआ कांपता है। एक जिंदा इंसान को जमीन पर बेबस करके उसकी चमड़ी को उतारा जाए तो किस तरह बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन आपका चमड़ा उतरा, आपकी खाल को उतारा गया और इसी पर भी बस नहीं, फिर छींटा मारा गया, फिर ताना दिया गया कि आसिया इस महल की तरफ देख जहां से तुझे कलमे की वजह से निकाल दिया, मूसा के रब की वजह से निकाल दिया। खुदा की कसम, आसिया को उसी दरबार की तरफ मुंह करके लिटाया गया था कि जिस महल में आसिया रहती थी। अल्लाह, मैं अपने तसव्वुर से कहता हूं, क्यों ना अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त में जन्नत का ठिकाना
ड्रामा आसिया को दिखाया होगा। फिरौन तुझे दुनिया का घर दिखाता है, तेरा रब तुझे आखिरत का घर दिखा रहा है। आसिया जिसकी मोहब्बत में तुम्हारी चमड़ी उधेड़ी जा रही है, फिरौन ने ऐलान किया कि अभी भी अगर पीछे नहीं हटती तो इसके बदन पर पीसी हुई मिर्चों को छिड़का जाए। इतिहास और तारीख में लिखा है कि उस उतरे हुए चमड़ी उतरे हुए बदन पर मिर्चों का छींटा देकर यही ताना दिया गया। आखिरकार आखिरी सांस आसिया ने लिया, अपने रब से तौबा करती हुई हजरत आसिया अपनी जिंदगी तो तमाम कर गई, लेकिन जान को कुर्बान करके ईमान का सौदा नहीं किया। हर ईमान वाले के अंदर यही खासियत और जज्बा और शुजाअत और बहादुरी होनी चाहिए। कहो इंशाअल्लाह हम अपनी जान अपने माल का सौदा कर सकते हैं, कभी भी ईमान का सौदा नहीं कर सकते। कहो इंशाअल्लाह, जोर से कहो, हाथ उठा के इंशाअल्लाह। अब यही वक्त है, कुर्बानियों का वक्त है। कहीं माल की मांगी जाती है, कहीं जान की भी मांग ली जाती है, लेकिन मैं कहता हूं कुरान के लिए किसी भी कुर्बानी का ऐलान हो जाए हमें पीछे नहीं हटना। कहो इंशाअल्लाह, क्योंकि दुनिया की जिंदगी हमेशा हमेश की नहीं है। गैरों की जिंदगी मरने पर खत्म होती होगी, हमारी जिंदगी तो मरने के बाद शुरू होती है। अब पता चलेगा हमने दुनिया के इस मैदान में रहकर, इस जमीन पर रहकर आखिरत के लिए क्या किया है। अपने नबी की मोहब्बत को सीने में रखकर, अल्लाह के नाजिल किए हुए कलाम से मोहब्बत करके अगर हमने अपने आप को नेक बनाया होगा तो मरने से पहले ही न जाने कितने फरिश्ते से इस्तिकबाल करते हुए आपके सामने खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि कहां दुनिया की गंदगी में, दुनिया के झगड़ों में, दुनिया की नफरतों में पड़ा हुआ था, अच्छे घर की तरफ निकल करके आजा। लेकिन अगर आमाल सही ना हुए, अगर मोहब्बत नबी से न रही, मोहब्बत नबी के दीवानों से न रही, मोहब्बत कुरान से न रही, मोहब्बत कुरान वालों से न रही, तो इसी की पलट समझ लीजिए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, एक नाफरमान गुनहगार जो अल्लाह का नाफरमान होता है, जब उसकी मौत का वक्त आता है तो आपने समझाने के तौर पर इरशाद फरमाया, एक रेशमी कपड़ा ले लो और कांटेदार झाड़ी पर उसको डाल दो, हर कांटा उस चादर से बाहर हो जाए और उस चादर का कोना पकड़कर झटका मार लिया जाए, कहीं से चादर फटे, कहीं से कांटा टूटे। गुनहगार की रूह को उसके जिस्म से इस तरह झंझोड़ के निकाल दिया जाता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। लेकिन नेक आदमी की रूह को जैसे मशकीजे में पानी भरा हो और नीचे की तरफ को उसको मुंह कर दिया हो तो पानी को बुलाना नहीं पड़ता, पानी को हाथ से निकालना नहीं पड़ता, बल्कि वो पानी उस ढलान की वजह से मुंह की तरफ बहकर आ जाता है। नेक आदमी की रूह हजरत इजराइल के थैले में ऐसे ही जिस्म से निकलकर बह जाती है जैसे पानी का मशकीजा अपनी झील में को पानी निकाल देता है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें पलटकर गफलत की नींद से उठकर अपने बसीरत दिल की आंखों को खोलकर जिंदगी गुजारने की जरूरत है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अल मरउ मा मन हब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा कल उन्हीं में खड़ा हो जाएगा। आज मस्जिद वालों से नफरत है, आज मदरसे वालों से नफरत है, आज कुर्ता पैजामा टोपी वालों से नफरत है। खुदा की कसम इन्हीं की कुर्बानियां हैं कि आज इस मुल्क में इस्लाम का नाम लेने वाला जिंदा है, ईमान का कलीमा पढ़ने वाला जिंदा है। जरा पलट कर पीछे तो चले जाइए। जब मुगल की हुकूमत खत्म होती है तो एक दौर ऐसा भी आता है, आपके सिर्फ उत्तर प्रदेश सूबा यूपी में एक वक्त ऐसा भी आया है 10,000 उलमा ने फांसी के फंदे पर लटक कर इस्लाम के कलीमे को पढ़कर सारी दुनिया को सबक दिया था कि जान को कुर्बान कर देंगे लेकिन ईमान का सौदा नहीं होगा। 10,000 मौलवियों को फांसी पर लटकना पड़ा था, और मौलवी ही नहीं बल्कि जिसके चेहरे पर दाढ़ी हो और लंबा कुर्ता हो पकड़ लिया जाता कि ये भी मौलवी होगा, फांसी पर चढ़ा दिया जाता था। 10,000 उलमा को सिर्फ सूबा यूपी के अंदर फांसी पर चढ़ा दिया गया। एक 3 साल के बाद जब आम माफी का ऐलान हुआ, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी जिनके आज ये शाना बशाना हजरात बैठे हुए हैं, खुदा की कसम उन्हीं की नूरानियत आपके अंदर भी है, इन उलमा के अंदर भी है। वही कासिम नानोतवी है, जब अदालत में लाकर खड़ा कर दिया जाता है आपके हाथ में तस्बीह है, जज ने पूछा है, अंग्रेज जज बैठा हुआ है, पूछता है, ए क्या मौलाना साहब आप
حکومت کے خلاف لڑتے ہیں کہ آپ نے حکومت کے خلاف اعلان کیا ہے، یہ قاسم نانوتوی ڈر کر کے تسبیح جیب میں نہیں رکھتا، اپنی زبان کو بند نہیں کرتا، بلکہ ارشاد فرمایا قاسم نانوتوی نے اپنے قدموں کو ثابت قدمی سے جما کر کہا کہ ہاں میں نے ہی حکومت کے خلاف اعلان کیا ہے اور جنگ لڑی ہے۔ کہ لڑنے کے لیے کیا ہے؟ جج نے کہا کہ کیا ہتھیار ہے؟ لڑنے کے لیے کون سا ہتھیار ہے؟ آپ نے جو تسبیح چھپا رکھی ہے اس تسبیح کو نکال کر کے پڑھنا شروع کیا، کوئی ہتھیار نہیں ہے، ایک دانے پر سبحان اللہ پڑھا کہ یہی میرا ہتھیار ہے۔ جج نے کہا کہ لگتا ہے کوئی پاگل آدمی ہے، اس میں عقل نہیں ہے۔ ہم جج کے سامنے کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے جہاد کیا ہے، میں لڑ رہا ہوں، میں نے حکومت کے خلاف اعلان کیا ہے، اور ہتھیار کو پوچھا جا رہا ہے تو ایک سبحان اللہ یعنی جملہ کہہ رہا ہے۔ جج نے اپنا قلم لے کر کہا یہ پاگل ہے، اس کے اوپر جو مقدمے ہیں وہ بیکار ہیں۔ حضرت نانوتوی وہاں سے بری ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرا بتانے کا مقصد یہ ہے، یہی وہ ہندوستان ہے جب مغل حکومت کا خاتمہ ہوا۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ جب حکومت مسلمانی ہوتی تھی، جیسے کہ دوسرے ملک موجود ہیں، وہاں کسی امام کی تنخواہ محلے میں اکٹھی نہیں کی جاتی، کسی مدرسے اور کسی کالج کی کوئی تنخواہ محلے میں اکٹھی نہیں کی جاتی، بلکہ حکومت تمام پڑھانے والوں کی تنخواہیں دیتی ہے، تمام مساجدوں کے ائمہ کی تنخواہ دیتی ہے۔ لیکن ہندوستان اب وہ والا ہندوستان نہیں رہا تھا۔ اس وقت کے علماء سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ حکومت کا تو بالکل ڈھانچہ ٹوٹ گیا، اب کیا ہوگا مذہب اسلام کا؟ کون کلمہ پڑھنے والا ہوگا؟ بیا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام علماء کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ اب حکومت کے چندوں پر نظر نہ کرو، بلکہ چندوں کے مدرسے کھولو۔ کیا فائدہ ہے چندوں کے مدرسوں سے؟ حضرات علماء نے نظر ڈالی کہ حکومت کیسے مدرسہ چلاتی ہے، کیسے نظام چلاتی ہے۔ حکومت چلاتی ہے کہ قوم اپنا ٹیکس حکومت کو جمع کرتی ہے اور حکومت اس پیسے سے نظام چلاتی ہے۔ حضرات علماء نے کہا کہ جہاں سے حکومت لیتی ہے ہم حکومت سے نہ لے کے ڈائریکٹ ان سے ہی کیوں نہیں لے لیتے؟ جب تک بھی مسلمان ملک کے اندر رہے گا، کوئی حکومت آئے یا نہ آئے، اسلامی حکومت ہو یا غیروں کی حکومت ہو، جب تک ہمارے ملک میں مسلمان رہے گا مدرسوں پر آنچ نہیں آئے گی، ہمارے مذہب پر آنچ نہیں آئے گی۔ رب کعبہ کی قسم 13 صدی تک چندے کے مدرسے کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس وقت میں حضرات علماء سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور حضرت مولانا مفتی محمد سعید صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کا یہ سبق اس طالب علم کے ذہن میں وقتی طور پر آیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب حضرات علماء نے سر جوڑ کر مدرسہ قائم کیا ام المدارس دارالعلوم دیوبند، اس کے لیے سب سے پہلا چندہ جو اکٹھا کیا، آج اگر کہیں جلسہ کر لو تو ایک عام آدمی بھی کہتا ہے لو بھائی اب یہ مولوی جو ہے چندہ کریں گے۔ دارالعلوم دیوبند سب سے پہلا چندہ اس کا جب ہوا، ذہن میں رکھنا 1 لاکھ 2 لاکھ کا چندہ نہیں ہوا، اتنی بڑی گنجائش نہیں تھی مسلمانوں کے پاس۔ تمام محلے سے گھوم کر، تمام مسلمانوں کی ٹھوڑیوں میں ہاتھ دے کر، تمام عزت داروں کے دروازوں پر جا کر مدرسے کے لیے جو چندہ اکٹھا ہوا، توڑی والوں ذہن میں رکھنا 113 روپیے دارالعلوم دیوبند کا بجٹ ہوا جو چندہ کر کے اکٹھا ہوا۔ اس وقت کے سب سے پہلے محتمم حضرت حاجی عابد رحمہ اللہ تھے، جن کے ہاتھوں میں 113 روپیے آئے، دارالعلوم کے خزانے میں جمع ہوا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں آج اگر میرے تیرے سروں پر یہ ٹوپیاں باقی ہیں، اگر چہروں پر داڑیاں باقی ہیں، اگر مسجدوں کے مناروں سے اذان کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، وہ انہی حضرات علماء کرام کی قربانیوں کی علامت ہے کہ جنہوں نے ایسے وقت میں کہ جب پانی پینے کو نصیب نہیں ہو رہا تھا، اپنی جان بچانی مشکل تھی، دارالعلوم دیوبند جاری کر کے ہمارے ایمان کی فکر ان حضرات نے کی تھی، اور آج میں اور آپ اسی کلمے کو پڑھنے والے ہیں۔ دارالعلوم کے شروع ہونے کے بعد
याद रखो, अगर मेरी माए बहनों तक ये आवाज जा रही हो, 6 महीने जब दालूम को हो गए, 6 महीने के बाद एक मुड़ी हुई कमर की बूढ़ी अम्मा अपनी लाठी के सहारे पर आती है और आकर के कहती है ये मदरसे का मालिक कौन है। उस वक्त में हाजी साहब सबसे पहले मोहतमिम थे, निकल करके आ गए। किसी ने कहा कि कोई बूढ़ी औरत आई है, तुमसे मिलना चाहती है। मोहतमिम साहब आए और कहा कि अम्मा बताओ क्या है। फरमाया, बूढ़ी अम्मा ने कि तू ही इस मदरसे को चलाने वाला है, क्या तू ही इसका मालिक है। मोहतमिम तो ना कहा गया कि तेरा ये मदरसा है, कि हाँ हम ही चला रहे हैं, अल्लाह चलवा रहा है। उस बूढ़ी अम्मा ने अपनी झोली में हाथ दिया और हाथ देकर कुछ निकाला। 10,000 20,000 नहीं, 1 लाख 1.25 लाख नहीं, खुदा की कसम कुर्बान जाइए ऐसी कौम की बूढ़ी औरतों पर कि जो दीन के लिए अपनी ऐसी खिदमत पेश करके इस कौम को सबक दे गई हो। हजरत फरमाते हैं, हजरत मौलाना मुफ्ती सईद साहब दामद बरकातुहुम रहिमहुल्लाह, फरमाया आपने अपने सबक में कि उस बूढ़ी औरत ने अपनी झोली में हाथ देकर 1,000 2,000 नहीं बल्कि 4 आने निकाले, जिसको हमारा बच्चा चवन्नी कहता है, जो आज बंद कर दी गई है। 98 भी बंद है, अगर सिलसिला शुरू है तो अब रुपया से है। चवन्नी देते हुए यूं कहा, चवन्नी देते हुए यूं कहा कि मैं चरखा चलाती हूं और धागा बुनती, धागा सूतती हूं। 6 महीने बराबर मैंने चरखा चलाया है, अपने घर का खर्च चलाया है और अपने घर के खर्च से बचाते बचाते 6 महीने में आज मुझे 4 आने की बचत हो गई। मेरे दिल ने गवारा नहीं किया कि मदरसे का चंदा हो रहा हो और तेरा कोई उसमें हिस्सा ना हो। ये चवन्नी में तुम्हारे मदरसे में जमा करने आई हूं। हजरत हाजी साहब ने ऐलान फरमाया कि दालूम के खजाने में ये 4 आने बाकी रहने चाहिए। लाख आएंगे, करोड़ आएंगे, खर्च हो जाएंगे, और यही हुआ। लाख आए और करोड़ आए, आते गए और खर्च होते गए। 100 साल की तारीख बताई आपने कि 100 साल तक बराबर उस बूढ़ी अम्मा के 4 आने दालूम के खजाने में जमा रहे, जिसकी बरकत से रब्बे काबा की कसम उस दुम्मुल मदारिस दालूम देवबंद से निकलने वाली शाखें, निकलने वाली टहनियां और पत्तियां आज तोड़ी में भी नजर आ रही हैं, आज शहरों में भी हैं, आज गांव देहातों में भी हैं। जितने ये मदरसे हैं यही उसी मदरसे की पत्तियां और शाखें और टहनियां हैं, उसी के स्रोत हैं, उसी के फल हैं, उसी का समरा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन मसाजिदों की और मदारिसों की अहमियत को पहचान कर, इनकी अजमत को और इनकी इज्जत को पहचान कर इनकी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। मुसलमानों, ये हमें वैसे ही नहीं मिल गया, बड़ी कुर्बानियां दी हैं हजरत उलमा किराम ने, बड़ी कुर्बानियां दी हैं हमारे बड़ों ने, वैसे ही सब कुछ ये कराहदारा नहीं हो गया। और अगर आज इनके खिलाफ कोई आवाज निकलती है तो इसमें मैं और आप ही कसूरवार हैं। खुदा की कसम, 5 वक्त निकलने वाली अजान का सही माना में हम जवाब देते तो कोई अजान के खिलाफ चलने वाला नहीं था। इन मदरसों की दरसगाहों में बैठने वालों की अजमत हम अपने दिलों में बिठाते तो इनके खिलाफ कोई कलम चलने वाला नहीं था, क्योंकि निजाम चलाने वाला वहां है, निजाम चलाने वाले दुनिया वाले नहीं है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, कुरान जगह जगह कह रहा है कि कुरान दुनिया के निजाम को चलाने वाला वही तो है, और यही तो हमारा कसूर है। सारी दुनिया अगर आज हमसे दुश्मनी करने पर आई है, अगर हमें दुश्मन जानती है और दुश्मन करार देती है, तो वजह सिर्फ यही तो है कि हम उस अल्लाह को अल्लाह कहते हैं कि जिनको मानने वालों को शुरू से अब तक आजमाइशों में आना पड़ा है और आजमाइशें होती रहेंगी। आजमाइशों से घबराने की कतन कोई जरूरत नहीं। मौत किसी की पहले, जोर से बोलो, नहीं आ सकती, और एक लम्हे के लिए भी बाद नहीं हो सकता। फिरौन बद्दुआ के बाद 40 साल जिंदा रहता है, मूसा की बद्दुआ के बाद भी 40 साल जिंदा रह रहा है। अल्लाह का निजाम है। लेकिन जब वक्त आया है तो बुखार नहीं चढ़ा, पैर नहीं टूटा, कोई बीमारी नहीं हुई, गाड़ी नहीं टकराई, बल्कि दुश्मन मुकाबले के लिए जा रहा है नबी के पीछे, नबी के चाहने वालों के पीछे जा रहा है। अल्लाह ने अपने चाहने वालों को तो रास्ता समंदर में दे दिया,
दुश्मन भी समझता था कि इसी रास्ते से तू भी पार हो जाएगा। अल्लाह का निजाम देखिए कि फिरौन किनारे पर खड़ा है तो पानी जब तक जारी नहीं हुआ, जब समंदर के दरमियान पहुंचा है, अल्लाह तबारक व तआला ने पहली सूरत पर चलने का हुक्म दे दिया कि मेरे चलने वाले समंदर, मूसा के दाखिल होने से पहले जैसे तेरे अंदर मौज और लहर आ रही थी उसी हालत पर चल जा। समंदर आपस में जुड़ा, सारी कौम मर करके गरक हो गई। इबरत के लिए आज भी उस फिरौन को निशानी बनाकर खड़ा कर दिया गया। नमरूद जो अपने खजाने के नशे में था, एक ही मच्छर को कारून के नमरूद के नाक में घुसाकर हलाक कर दिया गया। वही हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुस्ताख जमीन में धंसा दिया गया। शद्दाद अपने खजाने से अपने अकीदे के मुताबिक इस जमीन पर जन्नत बनाने वाला जब देखने जाता है तो 2 कदम घोड़े के दरवाजे में है, 2 कदम पीछे हैं। आर्डर आ जाता है मलकुल मौत जाकर के रूह को कब्ज कर लिया जाए। मलकुल मौत से पूछा गया, कभी किसी की रूह को कब्ज करने में मलाल आया? तो उसमें शद्दाद का नाम भी आया कि बड़ी हसरत से उसने उसको बनाया था, इतना मौका भी नहीं मिल पाया कि एक मर्तबा वो अपने महल को देख लेता। क्योंकि अल्लाह का निजाम है, जो जिसका वक्त है एक लम्हे के लिए पहले नहीं हो सकता, एक लम्हे के लिए नहीं टल सकता। जो जिसका वक्त है आकर के रहेगा। इसलिए मौत से घबराने की कतई कोई जरूरत नहीं है। कहो इंशाअल्लाह। हमने जो कलीमा पढ़ा है यही हमारा अकीदा है कि मौत वक्त से पहले नहीं आएगी। कोई किसी के हाथ से मरे, कोई किसी की लाठी से मरे, कोई ठोकर से मरे, पानी में डूब कर मरे, मकान गिर जाए, सड़क फट जाए, गाड़ी टकरा जाए, सब बहाने हैं। बेटे ने गाड़ी मोटरसाइकिल उठाई, बड़ी तेजी से भाग कर गया, सड़क पर हादसा हो गया। अब देखा गया कि दोस्त की कॉल आई थी, दोस्त ने बड़ी जल्दी बुलाया। बहन भी कहती है काश के उसका फोन ही ना मिलता। माँ भी कहती है कि गाड़ी भी तैयार खड़ी थी, काश के इसमें तेल ही ना होता। बाप भी कहता है काश के ये स्टार्ट ही ना होती, काश के दरवाजा ना खुलता, काश के ये इतनी जल्दी वहां ना पहुंचता। अरे तेरे काश के सब पीछे हैं। रब का निजाम तो यही था कि उस लम्हे में उसको वहां जाना है, चाहे वो खाना खा रहा था या किसी तकरीब में था या किसी खुशी में था, इसको वहां जाना था। क्योंकि इसके इंतजार में हजरत इजराइल मलकुल मौत बनकर वहां इसको बुला रहे थे, कोई और ले जाने वाला नहीं था। यह हादसे तो बहाने हैं। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जानदार को मौत का जायका चखना पड़ेगा। अगर तोड़ी में कोई बहादुर हो के जिसे मौत नहीं आएगी, वो हाथ उठा के बताएगा कि हाँ हम नहीं मरेंगे। सबको आएगी। अल्लाह का इनकार करने वाला मिलेगा, नबी का इनकार करने वाला मिलेगा, कुरान का इनकार करने वाला मिलेगा, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का इनकार करने वाला मिल जाएगा। आज तक ना मुझे मिला ना आपको मिला होगा, कोई मौत से इनकार नहीं करने वाला मिला कि हमें मौत नहीं आएगी। हाँ ये मिलते हैं कि मरने के बाद दोबारा हमें जिंदा नहीं होना, जन्नत जहन्नम कोई चीज नहीं है, ऐसा कहने वाले भी मिलेंगे। लेकिन मौत का इनकार करने वाला कोई नहीं है। इसलिए कि अल्लाह का कानून है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। हर चीज को फना है, बाकी रहने वाली जात रब्बे जुल जलाल की है। इसलिए मेरे भाइयों, हम अल्लाह के लिए जिंदा हैं, अल्लाह के लिए जिंदा रहे। जब मौत भी आए तो अल्लाह के लिए आ जाए। इससे बड़ी खुशकिस्मती और खुशनसीबी की बात क्या है? अल्लाह ने हमें माल दिया है, अल्लाह लेना भी जानता है। रास्ते बहुत सारे हैं, किसी का थाने में ले लिया जाता है, किसी का कचहरी में ले लिया जाता है, किसी का अस्पताल में ले लिया जाता है, किसी का खाना काबा की तामीर के लिए ले लिया जाता है, किसी का हज के लिए ले लिया जाता है, किसी का हज ज़कात के तौर पर मसाकीन और मुहाजिरीन और फकीर और मिस्कीनों के लिए ले लिया जाता है, किसी का मस्जिद की तामीर के लिए लिया जाता है। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। तफसील में जाने का मौका नहीं है, हजरत तशरीफ ला चुके हैं। इनकी मौजूदगी में इस तालिब इल्म का ज्यादा तबसरा करना शायद के गुस्ताखी से बाहर नहीं है। मैं अपनी बात को खत्म करने चला। मुसलमानों, ये तालिब इल्म तुम्हें ये दर्द देने आया है, तुम्हें अपने दिल का दर्द सुनाने आया है। आज हम इस किनारे पर आकर खड़े हैं, दुश्मन चारों तरफ से हमें घेरे खड़ा है। अगर अभी भी आंख नहीं खुली, अगर अभी भी बेदार नहीं हुए, हमने अपनी मस्जिद और मदरसों की हिफाजत के लिए कदम नहीं बढ़ाया, अपने
चेहरों को नबी के चेहरे के मुताबिक नहीं बनाया, अपने लिबास को सहाबा के लिबास के मुताबिक नहीं बनाया। नबी ने इरशाद फरमाया था, बनी इस्राइल में 72 फिरके थे, मेरी उम्मत में 73 होंगे। जहन्नम में कितने जाएंगे? वो कह रहे हैं एक जाएगा जहन्नम में, 72 जाएंगे। 73 फिरकों में से 72 फिरके जहन्नम में चले जाएंगे। सहाबा कांप गए, पैरों तले से जमीन सरकने लगी। 73 हिस्से और 72 के 72 जहन्नम में। हजरात सहाबा ने फरमाया, अल्लाह के हबीब फिर क्या होगा कि एक ही जमात होगी 73 में से जो जन्नत में जाने की मुस्तहिक होगी और जिन्हें जन्नत में भेजा जाएगा। अल्लाह के हबीब वो कौन सी जमात होगी? आपने इरशाद फरमाया, वो प्यारी जमात वो होगी जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर चलने वाली होगी, जो मेरे और मेरे सहाबा की जिंदगी से प्यार और मोहब्बत और लगाव रखने वाली होगी। वो एक तबका और एक ग्रुप और जमात जन्नत में जाएगा, बाकी सब के सब जहन्नम में चले जाएंगे। अब हर आदमी ये सोच रहा है कि न जाने कौन से फिरके में हिस्सा आ जाए। खुदा की कसम हम बड़े खुश नसीब हैं कि सबसे पहले इंसान, फिर ईमान वाला, फिर आखिरी नबी की उम्मत में, और ऐसे हक परस्त फिरके में आप बैठे हैं कि यही वो एक फिरका है, न किसी नबी का दुश्मन है, न किसी सहाबी का दुश्मन है, न किसी आसमानी किताब के खिलाफ है, न किसी अकीदे की बात के खिलाफ है। अगर कोई जमात ऐसी है जो मुकम्मल तौर पर हजरात सहाबा के मुताबिक जो अकीदा रखना चाहिए वो इनके पास है, जो किताबों के एतबार से अकीदा होना चाहिए वो इनके पास है। वरना किसी ने कहा कि तुम जन्नत में नहीं जाओगे, हम जन्नत में जाएंगे। यहूद और नसारा को सामने रख के कहना चाह रहा हूं, जो अपने नबी को कहते हैं कि ये वर हक, तुम्हारा नबी हक पर नहीं, नऊजुबिल्लाह। तो कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर आने वाली किताब हक पर नहीं, हमारे ऊपर आने वाली किताब हक पर। हम कहते हैं अल्लाह की तरफ से जितनी किताबें आई सारी हक पर, जितने सहीफे आए सारे हक पर, जितने नबी आए सारे हक पर, वो मासूम है। जितनी किताबें आई सब हक पर, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। एक एक सहाबी अजमत के लायक, असहाबी का नुजूम, इक्तदैतुम इक्तदैतुम। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद, जिसकी भी इक्तिदा करोगे राह रास्त पर पहुंच जाओगे। ये सारे अकीदे तुम मानने वाले हो कि नहीं हो? हाथ उठा के बताओ, दोनों सारे मानने वाले हो? इंशाअल्लाह अल्लाह इस अकीदे पर हम जब तक जिंदगी है अल्लाह जिंदा रखे, और जब वक्त अखीर आए तो इसी बेहतरीन अकीदे के साथ अल्लाह हम सब को दुनिया से रुखसत होना आसान फरमा दे। अल्लाह हम सब की तकदीर में खात्मा बिल ईमान लिख दे, क्योंकि खात्मा जिसका ईमान पर हो जाता है वो दोनों जहान का मालदार हो जाता है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मिफ्ताहुल जन्ना, ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी है। क्या है भाई? अब तुम्हारे पास है कि नहीं है? किस किस के पास है? हाथ उठा के बताओ। सबके पास है। तो जिसके पास जन्नत की चाबी हो, क्या वो गरीब हो सकता है? सारी दुनिया कह रही है मुसलमान गरीब, मुसलमान खुद कह रहा हम गरीब, मुसलमान कह रहा हमसे ज्यादा गरीब तो कोई नहीं। मैं चीख चीख के कह रहा हूं तुमसे ज्यादा मालदार कोई नहीं। खुदा की कसम, झोपड़ियों में गुजारा करने वाले जब पहले जन्नत में जाते हुए नजर आएंगे तो मालदार भी हसरत करेंगे, काश दुनिया में हम भी गरीब हो जाते, आज जन्नत में जाने का पहले नंबर आ जाता। दुनियावी एतबार से फटे हुए पहन लो कोई बात नहीं, बगैर जूती चप्पल के रहो कोई बात नहीं, बगैर छत के रहो कोई बात नहीं। ये 40, 50, 100 साल, 70 साल की गुजर जाएगी, लेकिन जो हमेशा हमेश की मिलने वाली है वो इसी चाबी की वजह से, जो ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मिफ्ताहुल जन्ना, के जन्नत की चाबी है, जिसके पास होगी ताला खोलेगा और जन्नत में। अब कोई कह रहा होगा तो इसका मतलब यह है ना तो सुबह को फजर पढ़ें ना जोहर पढ़ें, चाबी के मालिक तो हम हैं ही। ऐसे ही सोच रहे हैं ना, लेकिन इस चाबी की हिफाजत जरूरी है। दुनिया के ताले की चाबी भी बेगोरी कर दोगे, लावारिस उसको कर दोगे, मसान छज्जे पर डाल दोगे, उसकी सफाई नहीं करोगे, एक दिन मिट्टी उस पर लगेगी, पानी का कतरा लगेगा,
जंग लगना शुरू हो जाएगा। अगर आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की, आपने सफाई नहीं की, तो एक दिन वो चाबी ऐसी हालत को पहुंच जाएगी कि अब वो ताला तो क्या खोले, वो खुद उसका वजूद खत्म हो जाएगा। तो जिस चाबी का वजूद ही खत्म हो जाए तो क्या वो ताला खोल सकती है? यही ईमान की चाबी मेरे और आपके सीने में है। अगर नमाजें न पढ़ी, अगर रोजे न रखे, अगर मस्जिद मदरसों की इज्जत नहीं की, कुरान को सीने से नहीं लगाया, कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों की मोहब्बत को दिल में नहीं बसाया, इस चाबी पर जंग लगेगा। एक दिन तो सजदों का इनकार भी कर बैठेगा, रोजों की परवाह नहीं करेगा, ज़कात भी नहीं देगा, हज पर भी नहीं जाएगा, पड़ोसियों को भी सताएगा, रिश्तों को भी तोड़ेगा, एक दूसरे के ऊपर जुल्म करेगा। तो समझ लेना, नाम तेरा अब्दुल रहमान जरूर होगा, लेकिन जो ईमान की चाबी तेरे सीने में अल्लाह ने दी थी, तूने उसको कमजोर कर दिया। अब वो जन्नत का ताला खोलने के लायक न रही। अगर इस ईमान के साथ तू चला भी गया तो इस चाबी को दोबारा से जंग उतार कर जिंदा करने के लिए तुम्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा और न जाने कितने दिन तक जलना पड़ेगा। क्योंकि जब लोहे को जंग लगता है तो कहां तपाया जाता है? जल्दी बोलो। भट्टी में। जब लाल हो जाए तो हथौड़ा मारा जाता है, मैल छुट के नीचे गिर जाता है। अगर किसी के इस ईमान की चाबी पर जंग लगा हुआ वहां तक पहुंच गया तो जहन्नम में डालकर इस ईमान की चाबी को और तुझको भी गिरा करके आग लगा दी जाएगी। और फिर कुछ वक्त के बाद नबी सिफारिश करेंगे, सारी दुनिया का हिसाब किताब हो जाएगा। इतनी देर में वो पड़ा पड़ा जलता रहेगा, जबकि एक लम्हे की आग को भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आका ने फरमाया कि सुई के नाके के बराबर जहन्नम की आग को अगर आसमान से जाहिर कर दिया जाए तो सारी दुनिया जल करके हलाक हो जाए। इतनी खतरनाक आग है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे भाइयों, इस ईमान की चाबी की हिफाजत के लिए अब 2-4 मिनट के लिए मैं आपसे एक दरखास्त कर रहा हूं। करेंगे इंशाअल्लाह। जिस मस्जिद और मदरसे के निस्बत आपका ये जलसा मुनक़िद हुआ, मेरी और आपकी हाजिरी और मुलाकात हुई, क्यों ना हम जाते जाते इस जलसे की दुआ से पहले कुछ माली एतबार से इसका ताउन करें। ये जो अभी हजरत मुफ्ती साहब के